I think we can now begin. Let me know if you are able to see and hear all three elements: my voice, my video, and the screen. All fine? All right, let's start. Okay. So we are almost poised to conclude this particular aspect. We are at fiscal policy, and this will be our last discussion in this particular section of economy. This section is called public finance. I have clubbed public finance and fiscal policy together. So we have understood and had a good idea, at least a basic and comprehensive idea about how public finance in India works, what is government budgeting, what is the parliamentary procedure of budgeting, what are the restraints and constraints, what are the elements of a budget. And then we went on to discuss what are the elements of fiscal discipline, how fiscal deficit financing, these terms have evolved in Indian context, and how today India stands with regards to these particular parameters. Then, now we already have had a basic idea of fiscal policy yesterday. Today we conclude this particular section altogether. So if you see here, we have fiscal policy, the entire fiscal architecture or framework in India. If you know these four things, then you will be comfortably sailing through fiscal policy. Number one is fiscal policy itself, the document fiscal policy itself. It expresses itself through various announcements of the government, okay, through various legislations and announcements of the government, the stand of the government with respect to income of the government and expenditure of the government. Essentially, two aspects. The third aspect is also involved, which is commonly shared by fiscal policy and monetary policy, as we will see today. And that is debt, public debt. So there are three things: my income, my expenditure, because I am a government and a welfare state and I resort to deficit financing. So my expenditure is usually higher than my income. To fill up the gap between these two, I have to borrow from somewhere. I will try to borrow from the cheapest source. But that is inadequate, then I'll go for costlier sources, cheaper sources like external assistance, external aid, okay, or long-term concessional loans. Costlier sources means internal borrowings. Okay, I'll go to my own market, Indian market for money, and I'll try to borrow at market rates. These are called open market borrowings. This is what I will do. I'll borrow from RBI as a government. Okay, so I'll try all out efforts. Okay, if nothing else works, then I will go to RBI and say that, okay, I'm not able to find any money whatsoever. So now it is your turn. Under the obligation of the statute, you just print new notes and give it to me, because borrowing is not working anymore. So the RBI will be under obligation to print new notes and then supply it to the government, so that the government can use this money and fill up the gap between its expenditure and income. This is what we have learned. All right. This particular process has three different facets. Number one, the income of the government, receipt side of the government. And we all know that the major component of receipt of the government is tax receipts. Okay, tax receipts means two kinds of taxes: direct tax like income tax and indirect tax like GST. So these two kinds of taxes, they contribute to the major part of receipts of government. There can be certain non-tax receipts also. Okay, for example, suppose the government disinvests a particular public sector undertaking. LIC है, उसको disinvest कर दिया. कहने का मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन उसमें अलाउ कर दिया और जो पैसा आया वो गवर्नमेंट ने रख लिया. Yeah, this is a kind of non-tax receipt, absolutely. So tax receipts, non-tax receipts, these are the two major sources of government receipts. Suppose the total of these government receipts is rupees 80, but the expenditure which is on the head of the government is rupees 100. Then the government is falling short by 20 rupees. Where this 20 rupees gap will be filled from?
It can be borrowings, as we discussed. It can be borrowing from external sources. It can be borrowing from internal domestic sources, or it can be printing of new notes also. Whatever amount the government is falling short, even after exhausting its option of borrowing, the government will have to print new notes maybe. And that is, in the truest sense, in the crudest sense, deficit financing means, for Indian context, printing of new notes to fill up the gap of deficit. This is also called, in technical terms, monetization of debt, deficit, monetization of deficit. Monetization means using notes to fill up the gap, using freshly printed currency notes. So this is how we have understood it. Okay, so what is automatic monetization? The same thing, that whenever the government used to face a deficit situation, the government used to issue ad hoc treasury bills. These are the terms you should know. By now you must be comfortable. New people will not be. गवर्नमेंट अगर आरबीआई से कुछ पैसा चाहती है तो उसके बदले में गवर्नमेंट को कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी ना भाई, सिंपल सी बात है. तो ट्रेजरी बिल्स दे गवर्नमेंट जो है, ट्रेजरी का बिल है कि आपको जब कभी भी भाई जरूरत पड़े, हम अपने वादे से मुकरेंगे नहीं, आप ये बिल लेके आइएगा, इसके बदले में हम पेमेंट कर देंगे, लेकिन अभी इसको गिरवी रख लीजिए और उसके बदले में पैसा दे दीजिए, चाहे उधार दे दीजिए, चाहे नया नोट प्रिंट करके दे दीजिए. अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ट्रेजरी बिल्स ऐसे समझ लो उसको. So the government issues treasury bills to the RBI. RBI in turn prints new notes, those ad hoc treasury bills. The problem with that is sometimes it is okay. Sometimes it is all right that the government has to resort to deficit financing by way of printing of fresh notes. But the problem arises when this becomes a habit and it is used as a regular feature. और उसी ने situation खराब की. 1969, 1970 onwards दिक्कत यहाँ से चालू हो गई. ठीक है, धीरे धीरे करके. So that's the backdrop we have already discussed elaborately. So now let us come back and finish it off. So in that context, if you want to understand fiscal policy, then you have to understand the policy itself, government's own policy, finance commission, how finance commission works, how the finances collected are distributed between the union government and the state governments and union territories. Okay. Acha, what happens to the, I'm just asking a question, a stray question just came to my mind. It belongs to a different section actually. Budgeting. It belongs to budgeting, but we are, I mean, long past that aspect. But still, I'm asking, what happens to the union territories in terms of budget? उनका बजट कहाँ से आता है भाई? कैसे होता है उनका बजट? I'm waiting for your answer in the chat box. Don't Google it. Don't be a fool. Don't fool yourself. If you know, it's all right. If you don't, it's all right. If you know, you mention it. Are states permitted to have their own budgets? प्रेसिडेंट पैसा देता है उनको अपने सैलरी में से, है? Yes, Aditya. States are permitted to have their own budgets. They pass their own budgets. Yes, that's right. If UT has a state government like Delhi, state government का है बोल रहा है रे शुभम, terminology ठीक करो. You know it, I understand. But you amend your terminology. We don't write if UT has a state government. What do we write? If the union territory has its own legislature, assembly, खुद की असेंबली अगर है, दो तरह के यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगे ना. केंद्र शासित जो होंगे वो दो तरह के हो जाएंगे. एक जिनका अपना खुद की विधायिका है और एक जिनकी नहीं है ना. तो जिनकी विधायिका है वो क्या करेंगे? Obviously उनके पास तो है ही असेंबली ना. They are as good as any other state if you see for this particular purpose. So they will pass their own budgets. But what about the union territories which do not have their own legislature, like Delhi, Pondicherry, and Jammu and Kashmir? J&K, Delhi, and Pondicherry लोग ज्यादा जानकार हो, मुझे इतना याद नहीं रहता. खैर, so what about those union territories which do not have their own legislatures? का मतलब हिला हुआ है फंडा तुम लोगों का. No, this is not done. No, it's very simple, my dear friends.
The budget of union territories which do not have their own separate legislature is passed along with the union budget itself. It's as a part and parcel of the union budget. तो बेसिक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसमें तो गड़बड़ा दोगे सब लोग एकदम। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगा, तो आप लोग बहुत क्लियरली इस डिस्टिंक्शन को समझें। गवर्नमेंट वगैरह हम नहीं लिख सकते, गवर्नमेंट का मैटर ही नहीं है ना, ये पार्लियामेंट का मैटर है। ये दोनों में अंतर मालूम है ना, गवर्नमेंट दूसरा चीज हो गया, पार्लियामेंट दूसरा चीज हो गया भाई। बजट कहाँ पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर थोड़ा है बजट, इट्स अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। तो उसको गड़बड़ाइए मत, टर्म्स को गलत मत यूज कीजिए। खैर, सो वी कम बैक टू दिस। तो फिस्कल पॉलिसी, व्हाट आई वाज सेइंग दैट फिस्कल पॉलिसी जो कि तमाम तरह से गवर्नमेंट का जो आइडियाज और डिसीजंस होते हैं वो पता चलते हैं फिस्कल पॉलिसी, वो हो गई। बजट में मुख्य रूप से बजट समझ लीजिए, बजट में जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होते हैं। इनकम से रिलेटेड प्रोविजंस का क्या मतलब हुआ? मेनली टैक्स प्रपोजल्स, और एक्सपेंडिचर से ये सब शब्द हैं जो इस्तेमाल होते हैं, आप जानते होंगे। टैक्स प्रपोजल्स है ना, तो इनकम वाला हो गया, रिसीट साइड का टैक्स प्रपोजल्स हो गया, और एक्सपेंडिचर साइड में क्या बोलते हैं उसको? बजट आउटले, कि किसको कितना पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन आप समझते ही हैं कि कैसे पैसे का बंटवारा हो। भैया कमा तो लिया, अब यूनियन गवर्नमेंट है एक तरफ और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो उनमें पैसे का बंटवारा कैसे होगा? ये संविधान में कहीं दिए है? डज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ प्रोविजन फॉर दिस पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ फाइनेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस? ठीक है, चलो, ये संविधान में ये चीज दी हुई है, फाइनेंस कमीशन इसलिए बना ही है। ठीक है, फिर बजट आप जान ही गए, कुल मिलाकर ये एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे हैं। फिस्कल पॉलिसी जो है वो ओवरऑल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जिसमें बजट मेन डॉक्यूमेंट हो गया, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, सेट और सबसेट। एफआरबीएम ये नया एक लॉ आया है, आप जानते ही हैं, 2003 में आया, 2004 से शायद लागू हो गया था। इसका मतलब यह है कि जो जनरल प्रैक्टिस हमेशा से होती रहती थी वो ठीक है, अब कुछ और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी गई है सरकार के सिर पर, यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी गई है, ताकि आप और अनुशासन में रहिए। कुल मिलाकर बात यह है, बजट का पैसा खर्च करते समय आप थोड़ा अनुशासन में और रहिए। इसके लिए एक नया कानून आया है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, पहले एक्ट था, अब 2017-18 से शायद ना, या 18-19 से कुछ ऐसे ही, भी रिसेंटली इसको एक फ्रेमवर्क का नाम दे दिया गया है। पूरे को जो है वो खूब अच्छे से रिव्यू कर दिया गया है। एक अगर मुझे याद है तो इस पर एक कमेटी है, एनके सिंह कमेटी, मैं भूल न गया हूं भाई, कहीं नाम वाम कई बार मैं गड़बड़ा देता हूं। अगर आप में से किसी की श्योरिटी है तो बताइएगा कि मैं सही समझ रहा हूं कि नहीं। एनके सिंह कमेटी शायद इसी पॉइंट पे बनी थी, नहीं कमेटी तो बनी ही थी, मैं नाम खाली कंफ्यूज हो रहा हूं। तो जिसने पूरे एफआरबीएम लेजिस्लेशन को जो है रिव्यू किया है, और अब लेटेस्ट बहुत सारे नए नए 2-3 पॉइंट जो है वो आए हुए हैं, तो आप जाने रहिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 3-4 चीज समझ लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि मैं फिस्कल पॉलिसी ठीक ठाक समझता हूं। कुल मिलाकर बात ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आपको पता ही है कि हमको क्यों जरूरत पड़ती है पॉलिसी की। पॉलिसी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डिसीजंस मतलब जब गवर्नमेंट पैसा नोट प्रिंट करने पे आ जाएगा तो उससे दिक्कत यह है ना कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। अगर नोट की सप्लाई एक्सेस कर देंगे तो गवर्नमेंट बाहर से पैसा लेगी तो डेट की क्राइसिस हो सकती है, कर्जे में डूब जाए सरकार। गवर्नमेंट अपना खुद का डॉलर या फॉरेक्स का जो रिजर्व है वो यूज कर डालेगी, तो फिर अपने इंपोर्ट का बिल कहां से भरेगी? अगर इस फॉरेक्स रिजर्व को घाटा पूरा करने में लगा दिया, डेफिसिट को भरने में, तो फिर इंपोर्ट का बिल कहां से भरोगे भैया? और अगर डोमेस्टिक मार्केट से करोगे तो गवर्नमेंट इतना बड़ा है, अपने गवर्नमेंट की साइज इतनी बड़ी है भैया कि उस डोमेस्टिक मार्केट में से सारा पैसा तुम ही खींच ले गए, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा? उसके लिए तो इंटरेस्ट बहुत महंगा हो जाएगा फिर, क्योंकि आप सारा पैसा सोख ले गए, तो क्राउडिंग आउट हो जाएगी उसकी। तो इसलिए ठीक है, क्योंकि ये चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये चुनौतियां हैं, और जब चुनौतियां आती हैं सामने तो निर्णय लेने पड़ते हैं, फिर उनमें से किसी एक को चुनाव करना पड़ता है। तो ये चुनाव, जिस पॉलिसी के आधार पर चुनाव होता है उसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, कुल मिलाकर 2 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। एक कह लो रिसीट साइड का है, पैसा आ रहा है, और एक पैसा जा रहा है, दोनों साइड के ये वो है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रिसीट साइड का हो गया,
और जो रिसोर्सेज हाथ में आ चुके हैं उनका बंटवारा ठीक से हो, एफिशिएंटली वो एलोकेट हो। ये एक्सपेंडिचर साइड का हो गया, बहुत ही आसान। पॉलिसी के डोमेन्स, इसीलिए अब हम समझ चुके हैं कि क्या क्या डोमेन्स हैं पॉलिसी के। टैक्स पॉलिसी, कोई पूछे फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या क्षेत्र आते हैं, तो बोल देना टैक्सेशन की पॉलिसी, एक्सपेंडिचर की पॉलिसी और डेट की पॉलिसी, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस रहता है। जानते हो तुम ये तो बात। इससे चाहे जितना कमा लो, मान लो 50-60 रुपया कमा पाए, लेकिन खर्चा 100 रुपए का है, तो दोनों में डिफरेंस 40 रुपए का है, तो ये 40 रुपया कहाँ से आएगा? उधार तो लेना पड़ेगा। तो ये इसीलिए इन तीनों चीजों का, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड द डिफरेंस, इन तीनों से वो जो डील करे वही फिस्कल पॉलिसी। फाइन। पॉलिसी का इवोल्यूशन हम देख चुके थे बहुत अच्छे से इसको। नहीं, यही तो आज होना था। अब सुनिए कि फिस्कल पॉलिसी कैसे कैसे आगे बढ़ी है इस कंट्री में, ठीक है, कैसे इवॉल्व की है फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहले जो 1950s का समय था दोस्तों, हमने क्या चुना था बताओ? ये तो सब लोग जानते हो, कम से कम 20-25 बार तो बता ही चुका हूं। हमने चुनाव किया कि हम प्लान्ड डेवलपमेंट करेंगे, 5-5 साल के 5 ईयर प्लान्स रखेंगे, है ना, और इस प्रकार से हम प्लान्ड डेवलप करेंगे। तो जैसे ही शब्द आए प्लान्ड, वैसे ही आपको समझ जाना चाहिए कि प्लान्ड का क्या मतलब हुआ जी। कौन प्लान करेगा? जब आप प्लान्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं यानी कौन प्लान करेगा? ये सवाल, अगला पहला सवाल यही बनेगा जी, प्लान मतलब कौन प्लान करेगा? तो पता चला कि गवर्नमेंट प्लान करेगी, स्टेट जिसे कहते हैं। स्टेट वो राज्य वाला नहीं, ठीक है, इन्हें समझ लेते, जो प्रदेश वाला स्टेट नहीं कह रहा, कैपिटल एस वाला स्टेट, ठीक है। तो स्टेट प्लान करेगा, किसके लिए प्लान करेगा? पूरे इकोनॉमी के लिए प्लान करेगा। तो स्टेट के अलावा कौन बचा? बचा कौन? पब्लिक सेक्टर ये हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर बचा ना। तो पब्लिक सेक्टर लीडर का रोल प्ले करेगा और प्राइवेट सेक्टर जो है उसे फॉलोअर का रोल प्ले करना होगा, वो फॉलो करेगा जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस करेगा, अपना डोमिनेंट रहेगा, और सभी इंडस्ट्रीज वगैरह पे कंट्रोल तरीके से एक रोड मैप बनाएगा और उस हिसाब से इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। ये किस तरह के प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है? थोड़ा थोड़ा सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को, ठीक है। यही सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में ले और समाजवादी तरीके से जो है वो ग्रोथ हो, और ग्रोथ का फायदा जो है वो सभी वर्गों को मिले। कोई ऐसा ना हो कि कोई एक ही वर्ग लूट ले जाए सब कुछ। यही तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। तो ये कैसे इंश्योर करोगे कि ऐसा ना हो कि कोई एक ही वर्ग लूट ले जाए? कैसे इंश्योर करोगे? जब अपने हाथ में लोगे तब ना। सरकार सारी चीज अपने हाथ में ले लेगी, संसाधनों को अपने पर नियंत्रण स्थापित करेगी, तभी कर पाएगी ना भाई, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होता? अगर ये नहीं किए होते तो इसका उल्टा क्या होता भाई, ये भी तो बताओ। कैपिटलिस्ट। और सरल शब्दों में, एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है, सरल शब्दों में, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल न लेती तो कंट्रोल किसके पास होता? नहीं, प्राइवेटाइजेशन पर ना जाओगे, वो नहीं है सरिता। मार्केट याद करो ना, हम लोग पढ़े हैं ना भाई। अगर मार्केट बाजार के हवाले छोड़ दिया जाए, एक सिचुएशन वो है कि जैसे मार्केट चाहे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रिसोर्सेज का। जिसके पास पैसा है, जिसके पास डिमांड है, वो खरीद लेगा सब, वैसे बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भैया जिसको मार्केट के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता, नहीं तो गरीब गरीब रह जाएगा, भूखे मर जाएगा वो। तो बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनको मार्केट्स के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो इसलिए फिर उन्हें पब्लिक सेक्टर उठाता है जिम्मेदारी। तो एक हो गया सोशलिस्ट इकोनॉमी, या कंट्रोल्ड इकोनॉमी, या कमांड इकोनॉमी, बहुत सारे नाम हैं। और ठीक उसका उल्टा हो गया फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसपे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन सबसे अच्छा मिक्स क्या होता है दोनों के बीच का, कि भाई थोड़ा थोड़ा इनका भी कंट्रोल रहा, थोड़ी चीजें जो है जो उसके मार्केट के लायक है मार्केट के हवाले छोड़ दी जाए। जिसे मयंक ने लिखा और विपेंद्र वगैरह सब ने लिखा हुआ बहुत अच्छा जो है। तो फ्री मार्केट हो गया एक तरफ हो गया मयंक ने लिखा कि उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। सबसे जो कहते हैं भारत के लिए अभी क्या काम कर रहा है, फ्री मार्केट है कि मिक्स्ड है कि क्या है, सोशलिस्ट है क्या है? अभी आज की तारीख में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। यस, मिक्स्ड इकोनॉमी है, बिल्कुल सही बात है कि भाई कुछ चीजों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल और बाकी चीजें मार्केट के हवाले छोड़ दी गई। सिंपल सी बात है।
और पढ़ना भी नहीं चाहिए सरकार को। यही तो सारी लड़ाई है। हम लोग इसी पे तो बात कर रहे हैं इतने दिन से कि भाई गवर्नमेंट को उसी चीज में पढ़ना चाहिए जो मार्केट के हवाले ना छोड़ी जा सकती हो, जो मार्केट के हवाले छोड़ी जा सकती हो छोड़ दीजिए। खैर, तो जब आप ये बीड़ा उठाएंगे, सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप ये बीड़ा उठाते हैं कि हम करेंगे डेवलपमेंट इस पूरी का, कैसी कंट्री का, कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं। भारत जो है कितना बड़ा देश रहा है हमेशा से, भौगोलिक रूप से, जनसंख्या के रूप से। इट हैज बीन अ वास्ट कंट्री, vast economy, huge economy. So if you take up the responsibility of this particular onus, if you take this onus upon you as a public sector, then the inevitable चीज क्या है, कौन सी चीज है तो अटलनीय है, वो होनी ही है कि आपको बहुत बड़े बड़े लार्ज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे ना भाई। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आपने जिम्मेदारी उठाई है तो आप करिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सोशलिस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से। तो वही हुआ अभी। प्राइवेट जो सेविंग्स थी, लोगों के पास जो पैसा था, उसको गवर्नमेंट मोबिलाइज करती है और गवर्नमेंट फिर उसे इन्वेस्ट करती है। यही तो होता है भाई। ये देखो, गवर्नमेंट है, ये पब्लिक है, प्राइवेट कह लीजिए, प्राइवेट सेक्टर है। तो अगर आप इसको नहीं अलाउ कर रहे हैं कि ये खुद जाके इंडस्ट्री सेटअप करे, भाई कुल मिला के यही बात तो है। और आप कह रहे हैं कि आप हमको तो हम करेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से। तो कुल मिलाकर आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो सेविंग्स हैं उसे मोबिलाइज कर रहे हैं और उसको इन्वेस्टमेंट का जिम्मेदारी आप ले रहे हैं और फिर आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं आप। घूम घुमा के सिंपल सा इक्वेशन यही है भाई। तो ये आप एसेंशियली क्या कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर की सेविंग्स को ट्रांसफर मात्र कर रहे हैं, बस आप अपने थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की जो सेविंग्स हैं वो कहां चली गई, पब्लिक सेक्टर के पास, और पब्लिक सेक्टर ने फिर जिम्मेदारी उठाई कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। फाइन, सब जानते हैं। ये कब की बात चल रही है, 1950 1950s में, है ना भाई। आपको तो बता ही चुके हैं कि वही वो समय था ना, प्लान डेवलप 5 ईयर प्लान शुरू हो गए ना। तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज की बात आई भाई। हाँ भाई, सही बात है। असमानताओं को, जो विषमताएं हैं उनको समाप्त करेंगे, ठीक। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल सही बात। ये सब उद्देश्य थे भाई उस समय। समाजवाद क्या है, यही सब है। इन्फ्लुएंसिंग ट्रेंड्स इन द इकोनॉमी, और क्या चाहता था कि हम अपने हिसाब से ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस करें। हमारा जब मन हो तब, गवर्नमेंट की जब इच्छा हो, गवर्नमेंट को जब उचित लगे तब वो प्रो इन्वेस्टमेंट माहौल बना दे, जब नहीं हो तो एंटी इन्वेस्टमेंट माहौल बना दे। इस तरह की बात, मतलब माहौल को भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़वाना चाहे तो कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आवे कि आप जाइए और उड़ीसा के फलाना फलाना बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री डालिए। अगर वहां इंडस्ट्री डालेंगे तो आपको टैक्स से छूट दे दी जाएगी, टैक्स रिलीफ दे दिया जाएगा। इस तरह की चीजें कि इन्फ्लुएंस कर सके मार्केट को। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस था उस समय का करेक्ट। ये ध्यान रखना, एक बहुत बड़ा चेंज जो आया है। आपसे कोई भी पूछे, एक मिनट, कुछ गड़बड़ा है। कोई भी पूछे कि एक कोई ट्रेंड बताओ जो बहुत, इस पूरी ये जो टाइमलाइन चल रही है 1900 स्वतंत्रता से लेके और यहां तक, एक कोई ट्रेंड बताओ टैक्सेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट हो तो बताना। कि बाकी सब तो ठीक है कि लोग ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये है कि गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंस है वो इनडायरेक्ट टैक्स से हटके नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स पहले सबसे ज्यादा भार वहन करता था और अब डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो या तो बराबर का या 50% से भी अधिक का जिम्मेदारी उठाए हैं पिछले दशकों में, पिछले एक दशक में आप कह सकते हैं। स्पेशली 2000 के सन के बाद डायरेक्ट टैक्स बहुत तेजी से इनडायरेक्ट टैक्स को सरपास किया है। समझ गए, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। इंपॉर्टेंट ट्रेंड क्यों है, कोई बता सकता है भारत के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के लिए? अब तो हिंट दे ही दिया। डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो और इनडायरेक्ट टैक्स कम हो, इससे क्या फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, सही बात है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा जा रहा है चैट बॉक्स में, समझ लो। वो बार बार बताता रहता हूँ, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो इक्विटेबल होते हैं थोड़े। अच्छा, आप गरीब हो तो आप ठीक है सिर्फ 5% टैक्स भरो। आप बहुत गरीब हो, कोई टैक्स ना भरो। आप गरीब है, 5% टैक्स भरो। अच्छा, थोड़ा ज्यादा और इनकम कमाते हैं तो 10%, और इनकम कमाते हैं 20, और बहुत ज्यादा कमाते हैं 30%। ये देख रहे हो, ये इनकम टैक्स के ही तो रेट्स हैं। डायरेक्ट टैक्स का जो एग्जांपल है इनकम टैक्स, तो ये सुविधा कहाँ उपलब्ध है? सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस में उपलब्ध है। डायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है क्या? क्या कोई गरीब जाता है दुकान पे तो कह सकता है कि हमको ये डबल रोटी सस्ती दे दीजिए क्योंकि हम जो है वो है, गरीब हैं?
जो लिखा रहता है MRP, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है, तो उसमें जीएसटी भी तो होता है, सॉरी जीएसटी होता है कि नहीं होता है? तो कोई गरीब कह सकता है कि हमसे जीएसटी कम लीजिए? नहीं कह सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो विभेद नहीं करते हैं गरीब अमीर में, वो प्रोडक्ट वाइज होते हैं, वो पर्सन वाइज नहीं होते हैं। डायरेक्ट टैक्स पर्सन वाइज होते हैं, पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ये उस समय का हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये का है आ गया भाई दोबारा, ये शायद मिसप्रिंट है, हटा देंगे, चलो ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़िए थोड़ा सा भाई, पॉलिसी में आगे बढ़िए। आगे का समय आया 1970 जब आया, 1970s आते आते बीच में थोड़ा सा लोगों को समझ में आने लगा था कि ऐसे ग्राफ हो गया था कि भाई ऐसा हो नहीं पाएगा, मतलब ग्राफ इस तरह से हो गया था। पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर, थोड़ा सा समझ में आया लोगों को कि नहीं गड़बड़ है, उस तरह का रिटर्न मिल नहीं रहा है, पब्लिक सेक्टर में पैसा तो बहुत लगा दिए। तो बीच में थोड़ा बहुत आंख खुली थी लोगों की, लेकिन फिर से 1970s आते आते पॉलिटिकल एनवायरमेंट भी कुछ ऐसा बदला कि फिर से पब्लिक सेक्टर को रिवाइव करने की बात की गई। सोशलिज्म आ गया ना, सोशलिज्म का एक बार और जबरदस्त इन्फ्लुएंस आया, और इस प्रकार पब्लिक सेक्टर के महत्व को फिर से एक बार जो है वो कहा गया कि बढ़ जाए, जो पब्लिक सेक्टर का महत्व बढ़ाया जाए भाई। टैक्स रेट्स खूब हाई कर दिए गए, भयानक टाइप के, बहुत सारे टैक्स ब्रैकेट बना दिए गए, इतने में टैक्स करेंगे, तुम ये हो तो तुम्हें इतने टैक्स करेंगे। कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट आ गया। कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट क्या होता है कि मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो अपने फैक्ट्री में से बनाया कुछ सामान, तो पता चला यहाँ टैक्स ले लिया आप, उस मैन्युफैक्चरर से पहले आप इस पॉइंट पे टैक्स ले लिए, उसके बाद वो एक एक राज्य से दूसरे राज्य में गया तो फिर यहाँ टैक्स, बॉर्डर पे टैक्स ले लिए, फिर जब बिक रहा है तब टैक्स ले लिए। तो इस प्रकार उतने ही अमाउंट पे पता चला, जो अमाउंट है उस पर बार बार टैक्स हो रहा है वो। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस प्रकार की जो व्यवस्था हो गई, तो वो एक समस्या बहुत बड़ी आ रही थी। ठीक है, इस तरह की जो है समस्याएं बढ़ने लगी। फिर डिफरेंशियल टैक्सेशन भी हुआ कई बार, जैसे अगर मुझे याद है क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए अलग टैक्स और वाइडली हेल्ड कंपनी के लिए अलग टैक्स। अरे बहुत कंफ्यूज ना हो, परेशान ना होना कि ये सब सर क्या बोलने लगे अचानक से, कौन सी भाषा में। क्लोजली हेल्ड कंपनी को अगर आज आप समझना चाहिए सरल शब्दों में, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कुछ लोग मिलकर जो कंपनी बना देते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऐसे ऐसी कंपनीज जो शेयर मार्केट में पैसा इकट्ठा नहीं कर सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। और वाइडली हेल्ड कंपनीज मतलब जो जिनमें पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है, वाइड है उनकी होल्डरशिप, यानी जो शेयर मार्केट पे लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। तो वो जानना जरूरी नहीं है अभी कि उनका डिफरेंस क्या होता है, जानना जरूरी ये है आपके लिए कि भाई ऐसा भी समय था कि दो तरह की कंपनी के लिए अलग अलग तरह का टैक्स रेट भी था। ये सब प्रॉब्लम्स की बात है। ठीक है, स्टिल हाई डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अभी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पर हाई बनी हुई थी। थोड़ा और बढ़िया भाई, 1980 की, हाँ थोड़ा सा दे। आ गए ना वापस सब लोग? कोई छूट छाट नहीं गया ना? अरे कुछ बीच में दिक्कत हुई थी, चलो ठीक, वापस शुरू करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग वापस कर देते हैं। ओके, तो आप, मैं ये दिखा रहा था आपको खाली कि भाई 1980 के दशक में जो हम लोग चर्चा करते आए हैं ना, वही वाली बात आपको बता रहा था कि 1980 के दशक अगर देखा जाए तो 1980 का दशक, यहाँ पर प्रणब मुखर्जी वीपी सिंह वाला मुख्य रूप से जो बजट आपको बताया था ना, टैक्सेशन को उन्होंने रिड्यूस किया, लाइसेंसिंग को थोड़ा कम किया, डेफिसिट फाइनेंसिंग लेकिन बढ़ी, इन्फ्लेशन इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो याद आ गया ना। तो ये वो वाला फेज हो गया भाई कि 1980 का दशक जब आया तो थोड़ा बहुत जो है, थोड़े बहुत रिलैक्सेशन हुआ, थोड़ा सा रफ्तार मिली चीजों को, और थोड़ा सा टैक्स रेट्स को कम करने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस पीरियड को। ऑलराइट,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ 1991, ये तो आप जानते ही हैं सब लोग अच्छे से। 1991 को तो आप समझते ही हैं कि सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स जो है वो इसी सब समय शुरू हुए। सबसे ज्यादा क्या क्या हुआ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में रिफॉर्म, ये देखिए इसी को कहते हैं फिस्कल करेक्शन। कि टैक्स वैक्स बढ़ाने से नहीं होगा भाई, खाली सुनो बात को। देखो इस ये जो पीरियड अभी तक चला है और अब जो पीरियड आगे चलने जा रहा है, इसके बीच का मुख्य चेंज क्या है ये तुम समझ लो। आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ ले। क्या है वो कि भाई सुनो, ऐसा है कि इनकम साइड की अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। आप आप अपने डिसिप्लिन का पूरा फोकस, पूरा नहीं तो ज्यादातर फोकस यहां रखिए कि जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको धड़ल्ले से और बर्बाद टाइप का खर्च मत कीजिए भाई। तो एक्सपेंडिचर साइड जो मैकेनिज्म्स हैं उन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए भाई। और वही है डिसिप्लिन का जो है वो पहला मानदंड कि भाई रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंपोर्ट्स में कट किया गया भाई, इंपोर्ट में ही तो पैसा खर्च होता है सरकार का। जो देश का, सरकार का नहीं मतलब देश का जो पैसा जितना भी डॉलर मान लो आ रहा है किसी तरह से एक्सपोर्ट से, अगर इंपोर्ट करोगे कोई सामान तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सारा डॉलर चला जाएगा, फॉरेक्स निकल जाएगा। तो कट किया गया इंपोर्ट्स में। एक्सपोर्ट की सब्सिडीज जो दी जाती थी, बहुत हैवी सब्सिडीज दी जाती थी कि एक्सपोर्ट बढ़े भाई किसी तरीके से, उनको घटाया गया कि भाई नहीं अब अपने आप सस्टेन करिए आप। और टैक्सेस को रेशनलाइज किया गया अलग अलग तरीके से, बहुत सारा, उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। मुख्य टैक्स रैशनलाइजेशन का मुख्य पर जो होता है वो होता है कि कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इन सभी टैक्सेस पर, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकी जो रेट्स और ब्रैकेट्स और स्लैब वगैरह को ठीक किया जाए। कुल मिला के बात है। फिर आया फिजिकल डिसिप्लिन का लेजिस्लेशन का समय कि छोड़ो, ये किसी के ऊपर छोड़ते नहीं है, हम लोग कानून ही पास कर देते हैं, एक लेजिस्लेशन बना देते हैं, ठीक है। ये सब ऐसे परसुएजन से नहीं रखिए, नियम बना दीजिए। तो आ गया FRBM एक्ट ले आए कि सुनो अब जिम्मेदारी होगी हर सरकार की कि वो पार्लियामेंट में आके जवाब दे कि उसने कैसे पैसा खर्च किया है, जो बजट का पैसा था कैसे खर्च हुआ है वो। और हमारा ये गोल बन गया, फिर क्या बन गया कि इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखिए और ग्रोथ को हाई रखिए। ये टारगेट है हमारा, ग्रोथ हाई, इन्फ्लेशन मॉडरेट, ठीक। और सर्विस टैक्स एंड वैट में कट, कहने का मतलब सब टैक्सेस में कटौती भी की गई और हाई ग्रोथ और मॉडरेट इन्फ्लेशन का एरा आया। फिर क्या हुआ भाई 2008 का समय आया। याद है 2008 में क्या हुआ था? 2008 की कोई घटना, कोई वैश्विक घटना जिसने प्रभावित किया हो सभी अर्थव्यवस्थाओं को? आज तक दो ही घटना बताई है टोटल, उसके अलावा तीसरी वैश्विक घटना याद रखना ही नहीं है। दो ही चार बताते हैं कुल मिलाकर। मुख्य रूप से क्या हुआ, 1929 में एक डिप्रेशन हुई थी ग्लोबल, और फिर 2008 में रियल एस्टेट के कारण जो ग्लोबल क्राइसिस हुई रिसेशन की, वो ये दो चीज याद रखना है। तो वही हुआ था भाई। तो इसलिए काउंटर साइक्लिकल मेजर्स लिए गए। ये क्या होता है भाई काउंटर साइक्लिकल मेजर्स का? क्या बात हुआ कि साइकिल अगर नीचे की तरफ जा रही है, बिजनेस साइकिल नीचे की तरफ जा रही है, ये बिजनेस साइकिल क्या होता है? सबको ध्यान होगा तो तुरंत समझ जाओगे। बिजनेस साइकिल मतलब ये देख ही रहे हैं आप सामने। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, कोई पूछ ले तो बता देना भैया। कि जब सरकार को लगे कि अरे अब तो ये वाला पॉइंट हमारा अच्छा था और अब जो मामला नीचे जा रहा है तो रिसेशन की तरफ मैटर जा रहा है। तो अगर रिसेशन की तरफ मैटर जा रहा है तो यहां पर अगर काउंटर साइक्लिकल मेजर्स लिए जाए, साइकिल तो रिसेशन की तरफ जा रही है बिजनेस की, लेकिन हम ऐसे स्टेप्स लें कि ये बहुत नीचे ना चला जाए, ऐसे रह जाए, थोड़ा सा बच जाए। तो यहां पर जो सरकार फैसले लेती है इसको ज्यादा नीचे न जाने देने के लिए, उसे ही काउंटर साइक्लिकल फिस्कल मेजर्स कहा जाता है। फिस्कल भी हो सकता है, मॉनिटरी भी हो सकता है, दोनों पॉलिसी में लिया जाता है। काउंटर साइक्लिकल मेजर्स कहा जाता है। रुको, कौन हाथ उठा रहा है? रुको, पार्टिसिपेंट्स। हाँ भाई, नरसिंह त्रिपाठी बोलो। बोलो, हैंड रेज किए हो ना? नरसिंह त्रिपाठी। मैंने अलाउ किया आपको बोलने को, आप बोल सकते हैं चाहे तो। अरे यार, हाथ तो गलती से उठा रहा है, बताइए यार। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई नहीं कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं।
और मान नहीं रहे हो, फिर रेज हैंड किए हो, मतलब तगड़े वाला मामला है। कोई नहीं, कोई नहीं, आ जाओ, चलो। तो वापस आ जाओ, काउंटर साइक्लिकल मेजर्स हो गई है कि भाई 2008 जब आया, जब ये देखा गया कि पूरा का पूरा मामला जो है वो, पूरा विश्व जो है वो रिसेशन की चपेट में आ रहा है, तो सरकार को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि इकोनॉमी को थोड़ा सा बल मिले। तो उसके लिए क्या किया कि लोगों के हाथ में कुछ पैसा छोड़ना पड़ेगा ना, समझे मेरी बात को। काउंटर साइक्लिकल मेजर्स का क्या मतलब हुआ कि लोगों के हाथ में कुछ पैसा रहे भाई, ताकि इकोनॉमी चलती रहे, नहीं तो बैठ जाएगी पूरी। तो टैक्स कट्स किए गए कि टैक्स कम लगाओ। टैक्स कम लगाओगे तो क्या होगा, बताओ भाई। किसी के पास 100 रुपया आया, 100 रुपया पे आपने मान लीजिए 30% टैक्स लगा दिया, तो 70 रुपया तो उसके पास बचा। अगर आप टैक्स को कम कर दीजिए, बोलो कि नहीं इस बार हम 15% ही लगाएंगे टैक्स, 30 नहीं लगाएंगे, तो उसके पास 85 रुपया बचेगा, तो 15 रुपया आपने एक्स्ट्रा छोड़ दिया ना उसके पास। लिक्विडिटी उसके हाथ में ज्यादा हो गई ना, सेविंग लिक्विडिटी, उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा हो गई ना भाई। तो टैक्स कट कर दिए, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खुद एक्सपेंडिचर पे आ गई कि लाओ हम करते हैं एक्सपेंडिचर और पैसा बढ़ाते हैं मार्केट में। समझ गए बात को, जिसे इस प्रकार से किया गया। और 2008 इस कह सकते हैं कि ये पूरी रिजीम जो है, यहां से जो पूरी रिजीम है वो प्रूडेंस की रिजीम है, समझदारी, मैच्योरिटी वाली रिजीम है ये पूरी। और इस प्रकार से इंडिया में फिस्कल पॉलिसी का इवोल्यूशन हुआ है। अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो 1950 से पहले तक तो ब्रिटिश इंडिया था भाई, कुल मिलाकर वो फिस्कल न्यूट्रलिटी का दौर था। वो तो लूट खसोट रहे थे, उनका कोई लेना देना इस चीज से नहीं था कि इकोनॉमी को इस दिशा में ले जाया जाए, उस दिशा में ले जाया जाए। कुल मिलाकर बात यह है, और बहुत ज्यादा कुछ उस पीरियड में नहीं था। लेकिन आजादी के बाद से फिस्कल एक्टिविज्म की तरफ आए। क्यों आए फिस्कल एक्टिविज्म की तरफ? फिस्कल एक्टिविज्म और डोमिनेंस का क्या मतलब हुआ, समझ रहे हो? ये मतलब हुआ, नीचे लिखा हुआ है, जो हम बार बार कहते हैं उसके अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए शब्द सब लेकर आता हूं। फिस्कल एक्टिविज्म की तरफ क्यों शिफ्ट हुए हम? क्योंकि हमने जिम्मेदारी उठाई, सरकार ने जिम्मेदारी उठाई कि हम करेंगे। तो जब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को भचक के हुआ, अच्छे से हुआ, तो फिर ऑब्वियसली डेफिसिट्स होंगे ना। तो जब डेफिसिट हुआ तब वो कहां से भरे? मॉनिटाइजेशन के थ्रू भरे, यानी उसमें से जो है नोट वोट खूब सारा छापे वापे यही सब किए। और बाकी बना बनाया पैसा कहां से मिल गया? पब्लिक का प्रोविडेंट फंड हुआ, सेविंग्स हुए, इंश्योरेंस हुआ, इस सब का पैसा भी खूब कैप्टिव रिसोर्स मिल गया उनको, बैठे बैठाए सरकार को, तो उसको खूब अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। आपको ध्यान है कि सरकार इसको भी अपनी रिसीट गिनती थी, अपनी रिसीट मानते थे वो कि ये भी तो हमारा ही पैसा है। बाद में आके उनको होश आया कि तो वापस करना होता है भाई, ये हमारा पैसा तो है नहीं, तो इसको जो है काउंट करना गलत बात है। ध्यान होगा सबको, ठीक है। फिर जब ऐसा कुछ करती थी सरकार, फिस्कल पॉलिसी अगर इस प्रकार का डिसीजन ले ले, ध्यान से सुनिए मेरी बात, यदि फिस्कल पॉलिसी ऐसा डिसीजन ले ले कि हम जो है वो खूब डेफिसिट आएगा, आने दो डेफिसिट, कोई बात नहीं है, डेफिसिट पैदा कर दिया फिस्कल पॉलिसी ने, तो अब बेचारा आरबीआई के पास क्या रहेगा ऑप्शन? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे, ध्यान से सुना मेरी बात, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है खूब पैसा, ये इकोनॉमी है मान लो, इसमें खूब पैसा आता जा रहा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से, लार्ज एक्सपेंडिचर को करती जा रही है, तो नोट है नोट, नोट है नोट, इसमें सब बढ़ता चला जा रहा है सपोज, ठीक है, नोट आ रहा है खूब। तो अब आरबीआई का क्या पॉलिसी है? आरबीआई अगर देख रही है इस चीज को तो क्या करेगी बेचारी? बताइए, बेचारी मतलब ऐसे ही कह रहा हूँ। आरबीआई क्या करेगा इसमें? अगर ये मनी का सप्लाई बढ़ाता जा रहा है सरकार खुद, और बैंक्स भी बढ़ाने लगे, तो बवाल नहीं हो जाएगा? बैंक्स भी खूब सप्लाई बढ़ा दे पैसा, तो क्या हो जाए, प्राइवेट मतलब प्राइवेट सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ जाए और गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ जाए, तो क्या दिक्कत होगी? मैसिव इन्फ्लेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है कि नहीं है? मॉनिटरी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कि नहीं? खूब पैसा है लोगों के पास, तो मार मची हुई है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, लोग खरीदने को तुले हुए हैं, यही होगा। तो ऐसे में फिर आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? इसको संभालने के लिए, ये जो चीज हुई है इसको संभालने के लिए मनी सप्लाई कंट्रोल करना होगा आरबीआई को। तो वो कैसे करेगा? ये देखो, अभी तक इतना सब रटते आए हो कि एसएलआर बढ़ा दीजिए बैंक्स का, सीआरआर बढ़ा दीजिए, यानी ज्यादा पैसा वो ना दे पाए मार्केट में, यही तो घूम घुमाए के यही बतिया तो है कि बैंक का कुछ ऐसा रेशियो कर दीजिए कि अगर आप 100 रुपया पाते हैं तो आप सिर्फ 50 ही आगे बांट सकते हैं, 50 आपको रखना पड़ेगा हमारे पास। आरबीआई अगर ऐसा कहे कि 50 आप हमारे पास रख दीजिए,
हम आगे नहीं अलाउ करेंगे, तो 50 इसी तरह से तो कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जिसको नहीं मालूम है वो पुराने लेक्चर देख ले। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि आरबीआई फिर उस दौरान, उस फेज के दौरान क्या क्या करता था, जब सरकार फिस्कल एक्टिविज्म और फिस्कल डोमिनेंस का जो है युग चलाया करती थी, जो कि जरूरी था, उस समय के हिसाब से जरूरी था, तो आरबीआई का क्या रोल रहता था? तो मॉनिटरी पॉलिसी का रोल क्या रहता था? अगर फिस्कल पॉलिसी ऐसा कर दे तो मॉनिटरी पॉलिसी क्या करती थी कि भाई किसी तरह से मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाए, मनी सप्लाई को वो रेगुलेट करते थे, ठीक है। साथ ही साथ मॉनिटरी पॉलिसी, आरबीआई का एक रोल और क्या हुआ करता था, आपको ध्यान होगा कि आरबीआई भी डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया करती थी, डेवलपमेंट फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, ठीक है। आप तो जानते ही हैं नाबार्ड वगैरह सब कितने हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, हाउसिंग सेक्टर के बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो सब आरबीआई के ही कारण बने हैं। तो ये भी रोल हुआ करता था, लेकिन ये पूरा रोल जो है वो चेंज हो गया। तब चेंज हो गया जब फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और फिस्कल कंसोलिडेशन का दौर शुरू हुआ कि नहीं नहीं नहीं, सुनो भाई, ध्यान से करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ऐसे नहीं कर सकते। तो जो ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन है वो ड्रॉप कर दिया गया। एडहॉक ट्रेजरी बिल इशू कर देती थी गवर्नमेंट, मान लो ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आरबीआई को जो है वो ट्रेजरी बिल दे दिया करती थी, ये देखा है ना, ये तो बताए थे, यहीं पर चार्टे बना दिए थे उस दिन। ये होता था पहले, ये कि गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को डेफिसिट भरना है, 20 रुपए का नुकसान चल रहा है, 80 रुपया इनकम है, 100 रुपया खर्चा है, 20 रुपए का नुकसान चल रहा है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल इशू कर दिया, उन्होंने नोट छाप के दे दिया, उसको भर दिया। ये हुआ करता था और ये इनकी मजबूरी थी। गवर्नमेंट के मांगने पर आरबीआई मना नहीं कर सकता था, मना नहीं कर सकता था, तो मजबूरी थी भाई, इस तरह का सिचुएशन था। लेकिन जब से फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दौर शुरू हुआ तब से ये चीज बंद कर दी गई। तो पहला स्टेप ये हुआ कि हम नहीं, ये नहीं होगा भाई, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दौर है। ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन जो हो जाता है कि जब चाहे तब सरकार उससे नोट छपवा ले, नो, अब नहीं होगा। नंबर 2, उसकी जगह पे क्या किया गया, वेज एंड मीन्स एडवांस, इसको कहते हैं, एक नई स्कीम लाई गई कि टेम्पररी कुछ जरूरत पड़ जाए, आपको एकदम हालत खराब हो, 90 डेज का होता है ना पीरियड इसका, 90 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा वापस कर देना पड़ेगा। आरबीआई आपको हेल्प तो करेगा लेकिन उस तरह से नहीं जैसे पहले हुआ करता था। WMA स्कीम के तहत आपको पैसा मिल जाएगा टेम्पररी मिसमैच को ध्यान रखने के लिए, लेकिन यह है कि वो आप वापस कर दीजिए 90 दिन में भैया, ठीक है। और जब ये बंद हो गया तो गवर्नमेंट पैसा कहां से लावे, तो बोला आप ओपन मार्केट से बाई करिए, आपके साथ क्यों भेदभाव किया जाए। सिंपल सी बात है कि आप भी जाइए मार्केट में और उसी रेट पे पैसा जब आपको उठाना पड़ेगा तब आपको अनुशासन का महत्व तो पता चलेगा। आप मार्केट में जाइए, ओपन मार्केट में, और वहां से पैसा आप बोरो करिए। फिर ये जो मैंडेटरी फाइनेंसिंग की थी कि आरबीआई अगर गवर्नमेंट इशू करता है कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आरबीआई उसका प्राइमरी सब्सक्राइबर होगा। प्राइमरी सब्सक्राइबर यानी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया कोई भी सिक्योरिटी आरबीआई को सब्सक्राइब करना ही पड़ता था, वो भी खत्म हो गया, कम कर दिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी मूव टुवर्ड्स इनडायरेक्ट मेजर्स, ये क्या होता है भाई, है? चलो जो लोग पढ़े हुए जरा बताओ तो, मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मेजर्स की तरफ चली गई, ये क्या मतलब हुआ? तो किससे किसकी तरफ चली गई, जरा लिखो चैट बॉक्स में, आधे लोग तो समझ नहीं आएगा जो ठीक से पढ़े नहीं थे। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है जब आरबीआई मार्केट में, इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने पे आ जाए। तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट तरीके और इनडायरेक्ट तरीके। मैं बस वही पूछ रहा हूं कि वो क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके। डायरेक्ट तरीके का एक उदाहरण लिख लीजिए, एक इनडायरेक्ट तरीके का उदाहरण लिख दीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स भूल गए सब आप? CRR, SLR, ठीक है। और एक तरफ क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, याद आया? रिपो, रिवर्स रेपो, ये सब था ना। बस वही बात है। तो डायरेक्टली जो है मार्केट को अफेक्ट करने के बजाय इनडायरेक्ट मेजर्स पे आरबीआई चले गए, ठीक है। फिर आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया डेवलपमेंट को, जो फंड किया करते थे, जो अभी बताया था कि नाबार्ड वगैरह का शेयर कैपिटल और सभी नहीं के पास था, तो ये काम नहीं रहेगा। वो बोले कि हमारा ये सब काम नहीं है भाई, हम ये सब नहीं करेंगे।
ठीक है, हमारा काम सिंपल सा मॉनिटरी पॉलिसी को इफेक्ट करना है और हम वही करेंगे। फिर पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थे, उनको पहले क्या हुआ करता था, अप्रूव्ड मार्केट बोरोइंग का एक फैसिलिटी अवेलेबल था। बोला नहीं, आपसे ये फैसिलिटी मिली जाती है, गवर्नमेंट की तरह आप भी जाइए और ओपन मार्केट में आप खुद बोरो करिए। ये सारे मेजर्स लेकर फिस्कल डिसिप्लिन, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिस्कल कंसोलिडेशन का रास्ता अपनाया गया। मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। देयर इज नथिंग वेरी conceptually intriguing और very difficult here. Okay, आगे बढ़ते हैं अब। और लास्ट टॉपिक हमारा जो है पब्लिक फाइनेंस में, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ये है कि ये दोनों पॉलिसीज जो आपने पढ़ाई है सर, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ये आपस में कैसे सामंजस्य स्थापित होता है, कैसे काम करती है। तो देखो भाई, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों का ही कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या है उनके। देखो, फिस्कल पॉलिसी का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का अपना अपना पहले देख लो। आदित्य, गवर्नमेंट आरबीआई को डिविडेंड देती है, तो व्हाट डू यू वांट टू आस्क, व्हाट इज दैट? मतलब प्रॉफिट में जो शेयर होता है ना, गवर्नमेंट उसको लेती है। आरबीआई जो के जितना भी ऑपरेशंस हैं, उस ऑपरेशंस के थ्रू करेंसी कंट्रोल और तमाम ऑपरेशन के थ्रू, करेंसी का एक्सचेंज, उसके थ्रू जो भी प्रॉफिट होता है आरबीआई को, उसमें जो गवर्नमेंट को हिस्सा मिलता है वही डिविडेंड है। I don't know. There is something that can be googled. टैक्स पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड डेट पॉलिसी। ऑलराइट, तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो, उसका क्या काम है, हम लोग अभी देखे थे कि टैक्स पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी और डेट पॉलिसी, तीनों का ध्यान रख लिया जाए भाई। टैक्स का ध्यान रख लो, अपने एक्सपेंडिचर का ध्यान रख लो और डेट का ध्यान रख लो। इन तीनों का अगर ध्यान रख लीजिए तो फिस्कल पॉलिसी हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है, प्राइस की स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी कुल मिलाकर क्या कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन को बढ़ने न दिया जाए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा जाए। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण काम तो है भाई, 1990s से आपको ध्यान है ना कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का जब से ओपन किया गया है इकोनॉमी को, तब से एक नई जिम्मेदारी आरबीआई पे आ गई है, और वो क्या है, एक्सचेंज रेट का मैनेजमेंट, वो भी ध्यान रखना है। और तीसरा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। डेट के इंस्ट्रूमेंट जो है, किस माध्यम से कर्जा उठाया जाए, ये इसकी हेल्प करती है, आरबीआई हेल्प करता है गवर्नमेंट को इसमें। तो डेट, यहाँ भी डेट लिखा है, यहाँ भी डेट लिखा है, तो ये एक एरिया हो गया कि नहीं हो गया जहां पर दोनों आके मिलेंगे। हाँ, यही वो एरिया है जहां पर मुख्य रूप से फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी एक दूसरे से मिलते हैं। वैसे उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जो कि हाई भी हो और सस्टेनेबल भी हो। ऐसा नहीं कि एक साल हुई दूसरे साल घुस गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई ग्रोथ हो और सालों साल कायम रखी जा सके। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है दोनों का कि प्राइस स्टेबिलिटी की रीजनेबल डिग्री बनी रहे भाई सरकार में, इकोनॉमी में। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल बना रहे। बैलेंस ऑफ पेमेंट बताएंगे आगे। तो अगर बहुत सरल शब्दों में मैं आपको कंसेप्चुअली समझाऊं, तो जो उधारी है, गवर्नमेंट का जो कर्जा है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो कर्जा है उसका साइज, यानी गवर्नमेंट कितना कर्जा लेगी, ये तय करती है फिस्कल पॉलिसी। और वो कर्जा किन किन रूपों में उठाया जाएगा वो तय करता है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर कभी एक लाइन में किसी को समझाना बताना आ जाए तो ऐसे समझा दे, ठीक है, कि गवर्नमेंट के जो डेट, पब्लिक डेट है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। और इस साल कितना कर्ज उठाना है, कितना डेफिसिट है, कितना डेफिसिट में उधारी लेनी है, ये काम है फिस्कल पॉलिसी का। ठीक, तो फिस्कल पॉलिसी डिटरमिन्स द क्वांटम ऑफ पब्लिक डेट, while monetary policy determines the impact of public debt on aggregate demand। ये लाइन क्या लिखी हुई है, बहुत आसान है। अगर आप फंडामेंटल्स ठीक से समझे हुए हैं जो हम बताते आ रहे हैं, बहुत आसान है इस लाइन को समझना। ये क्या कह रहा है कि फिस्कल पॉलिसी ये तय करती है कि क्या क्वांटम होगा डेट का, कि कर्जा कितना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है कि भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है, टोटल डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड है, उस पर इस डेट का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ना, वही जो हम हमेशा से एग्जांपल लेते हैं वही फिर से देख लो। ये मान लो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को डेट लेना है, ये तय है।
एकदम तय बात है ये, गवर्नमेंट डेट तो लेगी, लेकिन वो डेट किस रूप में लेगी? मार्केट में आके बोरो कर लिया, अगर सारा पैसा सोख ले गया तो कैपिटल पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर, अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी कह लो, उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर वो पड़ेगा तो बाकी जो पूरा सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसके लिए महंगा हो जाएगा कि नहीं? कि गवर्नमेंट इतना बड़ा कंपटीशन बन के उभरेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट लोग बढ़ा नहीं देंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, डिमांड और इन्वेस्टमेंट दोनों लो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे मार्केट में? तो उसका डिमांड पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? देखो डेट का। दूसरा तरीका लीजिए कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने कहा कि छोड़ो छोड़ो बोरोइंग छोड़ो, नया नोट छाप देते हैं, न्यू नोट्स, न्यू करेंसी नोट छाप दिए, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? खूब सारा मनी सप्लाई खूब बढ़ गया। तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन जैसी स्थिति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताइए। लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा आ जाएगा तो वो डिमांड जो है, वो डिमांड ज्यादा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कुल मिलाकर बात आप समझ लीजिए ऐसे कि पब्लिक डेट कितना होगा ये तो फिस्कल पॉलिसी ने तय कर दिया, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के हाथ में यह है कि सुनिए ना, हम बताते हैं आप अपना डेट कहां कहां से उठाइए ताकि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये ज्यादा नुकसान नहीं करे। समझ गए बात? ये सिंपल सा मॉनेटरी पॉलिसी का काम हो गया। ठीक। लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट, पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग, कि कितना मोनेटाइजेशन डेफिसिट का करना है, यानी कितना जो है उसको नोट से भरना है। डिपेंडेंस ऑफ, क्या लिखा हुआ है यार, डिपेंडेंस ऑन होना चाहिए। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सेविंग्स आर सम ऑफ द एरियाज वेयर बोथ पॉलिसीज हैव इंटरप्ले। बिल्कुल सही बात है, दोनों यही यही कुछ एरियाज है जहां पर दोनों पॉलिसीज आपस में आके मिलेंगी। माइक्रो इकोनॉमिस्ट क्या बताते हैं दोस्त, कि एक और फैक्टर है। ये सब डिस्कशन हम कब कर रहे हैं? जब इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड हो। ठीक है, ये देखो ना, बार बार ऐसे ऐसे बनाता हूं ना कि ये इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मॉडल लेके हम चल रहे हैं ना। अब इकोनॉमी क्लोज नहीं है, इकोनॉमी ओपन भी है एक जगह, यानी इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी लेना देना है। तब तो और चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि एक तो हमारे डिसीजंस का इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे, दूसरा पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, ये भी तो चीज आएगी भाई। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका एक्सचेंज रेट अगर फ्लोटिंग वाला एक्सचेंज रेट है, यानी ओपन इकोनॉमी वाला सिस्टम है, तब मॉनेटरी पॉलिसी को ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए फिस्कल पॉलिसी की तुलना में। ठीक है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी से ज्यादा इधर उधर करिएगा अगर आप, तो वो करंट अकाउंट का जो हमारा लेन देन है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो लेन देन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो लेन देन है, उसको वो प्रभावित करेगा। फिर गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करने पे आ जाएगी, गवर्नमेंट अगर मनी सप्लाई को जो है वो अपने हाथ में लेने आ जाएगी एक्सपेंडिचर वगैरह के थ्रू, तो फिर इसका जो है वो करंट अकाउंट पे सीधा असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा सीधा असर? मनी का, रुपये का सप्लाई कितना है मार्केट में, क्या इस बात का प्रभाव डॉलर की रेट पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ भाई, अब तो समझदार लोग हो सब लोग। किसी इकोनॉमी में देखो, ये इकोनॉमी हो गया, यहाँ रुपए की बात हो रही है, ठीक है, रुपया बढ़ाता जाए सरकार, रुपया बढ़ाता जाए सरकार, तो डॉलर डॉलर की तुलना में रुपया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो डॉलर की तुलना में अगर रुपया बढ़ जाएगा तो रुपए का वैल्यू वैल्यू नीचे कम हो गया कि नहीं हो गया डॉलर की तुलना में? समझ गए? तो जिसे कहते हैं एक्सचेंज रेट पर सीधा असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है सप्लाई का, मनी सप्लाई का। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी तो देखो साल में एक बार होता है। इस बारे में किसी को कुछ शक है? फिस्कल पॉलिसी कुल मिलाकर बजट के समय ही तो प्रभाव में आती है 99% ऑफ द टाइम्स, और तो कभी होता नहीं है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कब कब उपयोग में लाई जा सकती है? लिखो जरा चैट बॉक्स में अगर जानते हो तो। सोचो जरा, सोच के बताओ भाई। ऐसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। बाई मंथली, एवरी 2 मंथ्स गड़बड़ा दे रहे हो तुम लोग भाई, तो मतलब
बहुत क्लियर। हाँ शगुन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये क्यों सही है? शगुन का रेस्पॉन्स क्यों सही है, आप बताओ सब लोग। अरे याद करो ना, हम लोग तो पढ़े हुए हैं भाई। याद करो कि हम लोग क्या ये नहीं पढ़े थे कि कम से कम साल में 6 बार मिलना है उस कमेटी को। याद आया? कॉन्सेप्ट को रजिस्टर कर लिया करो भाई, कम से कम एटलीस्ट 6 टाइम्स ईयर मिलना ही मिलना है। बाई मंथली जो बोल रहे हो, समझ गए बात? इंटरवेंशन कभी भी आरबीआई कर सकता है, बिल्कुल सही। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन कैन बी डन एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यही बढ़िया बात है। तो अब आपका करेंसी एक्सचेंज भी फ्लोटिंग वाला सिस्टम है, और मॉनेटरी पॉलिसी की फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको जो है अवेलेबल है कि जब चाहे तब आप इंटरवीन कर सकते हैं, कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक बेटर इंस्ट्रूमेंट हो जाती है फिजिकल पॉलिसी की तुलना में, इस पर्पस के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन वगैरह के लिए। क्या सही बात नहीं है? है कि नहीं? तो साफ साफ दिख रहा है। अगर हमारा भाई जो फिक्स्ड रहता, पुराने जैसा समय रहता, तब अलग बात थी, फिजिकल पॉलिसी बेटर होती। लेकिन अभी के समय में मॉनेटरी पॉलिसी को उसका ड्यू इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। समझ गए? इसको कहते हैं फिस्कल डोमिनेंस। अगर आप फिजिकल पॉलिसी को ही एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के तरह समझते हैं, दैट इज फिजिकल डोमिनेंस, व्हिच इज नॉट करेक्ट नाउ। ये अब जो है ऑब्सोलीट मानी जा रही है, ये अब इसका दिन गए। ये एक ऑब्सोलीट प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी को उसका स्थान मिलना चाहिए, और वही हुआ भी है। करंट स्टेटस क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ग्रेटर ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिली हुई है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेजर्स को ज्यादा उपयोग में लाया जा रहा है, इसीलिए मॉनेटरी ट्रांसमिशन ज्यादा बेहतर है। आप डंडा चला रहे हैं, हंटर मत चलाइए। मॉनेटरी ट्रांसमिशन याद है किसी को? फिर 1 मिनट का देता हूं टाइम। क्या होता है भाई मॉनेटरी ट्रांसमिशन? लिखो चैट बॉक्स में। कोई लिखा नहीं है? नहीं ध्यान है, भूल गए सब। हाँ थोड़ा थोड़ा पहुंचे शुभम भाई। भूल गए? चित्र उत्र बना के बताए थे, देखो ऐसे होता है ना। ये मान लो, नहीं नहीं सुनो। हाँ क्या बोले? एक्सटेंड चेंज इन, पहुंच रहे हो, पहुंच रहे हो, बिल्कुल ठीक। ये मान लो जो है आरबीआई है, और ये हैं बाकी बैंक्स। छोटे छोटे बैंक्स बना दो, 4 5, जो बैंकिंग सेक्टर हो गया। आरबीआई और बैंक के बीच का जो लेन देन है, उसके रेट में, जैसे पॉलिसी रेट कह दो, कोई भी पॉलिसी रेट हो जाए वो, उस पॉलिसी रेट में अगर कोई अल्टरेशन किया जाए, चेंज ऊपर नीचे, तो वो इफेक्ट यहां दिखना चाहिए, बैंक्स और उसके कस्टमर्स के बीच के रिलेशनशिप में। समझ गए? सिंपल से याद आया कि नहीं याद आया? आरबीआई मान लो रेट कम कर दे कि लो आसानी से चलो, जाओ जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे। तो फिर वही फायदा इनको अपने कस्टमर्स को भी तो पास ऑन करना चाहिए। ऐसे समझ लो सरल शब्द में। इसी को मॉनेटरी ट्रांसमिशन कहते हैं, कि आप पॉलिसी में जो डिसीजन लीजिए वो ऑन द ग्राउंड, जैसा कि किसी ने लिखा कि ऑन द ग्राउंड वो दिखाई पड़ना चाहिए। तो तभी दिखाई पड़ेगा जब आप मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रीडम देंगे, और मॉनेटरी पॉलिसी को एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बनाकर जो है वो आप यूज करेंगे भाई। और फिर साथ साथ और क्या अच्छी बात हुई है कि गवर्नमेंट के जो बोरोइंग प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे, बेटर और डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। अब गवर्नमेंट ओपन मार्केट में जाके बोरो करती है, न कि आरबीआई को पकड़ के दबा दिया, या फिर जो है वो क्या बोलते हैं, पीएफ और सेविंग्स के ही बल पर सारा काम चला रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारा है ही। इन चीजों से बाहर आकर अब थोड़ा बहुत ऑपरेट जो है ओपन मार्केट में भी जाके वो गवर्नमेंट बोरो करती है। और इस प्रकार फाइनेंशियल सेक्टर भी जो है वो मोर कॉम्पिटिटिव हो गया है हमारा। फाइनेंशियल सेक्टर का मोर कॉम्पिटिटिव होने का क्या मतलब हुआ कि जो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट्स हैं, ठीक है, जब तक आप इनका दुरुपयोग सरकार करती रहेगी, ऐसे कहना नहीं चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दोहन कह लीजिए।
जब तक इसका दोहन सरकार जो है वो एक गैर अनुपातिक तरीके से करती रहेगी, तब तक फिर ये किसी काम के नहीं रहेंगे। ये तो सरकार के लिए एक वो बन जाएंगे, एक स्लेव जैसा बन जाएंगे। नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर का काम है कि भाई सब लोग जो है बराबर आवें, लड़ाई करें, तब तो दंगल अच्छा बनता है। कोई दंगल जो है वो कब अच्छा बनता है, कब अच्छा कहा जाता है? जब बराबर के पहलवानों में लड़ाई हो। टूर्नामेंट अच्छा कब होता है? वन साइडेड हो जाए तब मजा नहीं आता है ना गेम। तो सब बराबर से कॉम्पीट करें। गवर्नमेंट भी मार्केट में पैसा उठाने के लिए आ रही है, प्राइवेट सेक्टर भी मार्केट में आ रहा है पैसा उठाने के लिए। तो इस प्रकार फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। धीरे धीरे उसी दिशा में सारी चीजें जा रही हैं, उसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये रहा कुल मिलाकर। हम पब्लिक फाइनेंस से चले थे, एक नजर सारा देखते चलिए और फिर इसे कंक्लूड करते हैं। 25-26 पेज का यह है नोट्स। देखिए ये हमने कवरेज किया टोटल। हमने देखा कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इकोनॉमी में, बिजनेस साइकिल्स क्या होती हैं, डिप्रेशन के बारे में जाना, कीनीजियन आइडियाज जाने, इंडिया का केस जाना, फिर गवर्नमेंट बजटिंग में गए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखा, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर देखा, बजट साइकिल देखी, बजट के कंपोनेंट्स देखे, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड, ये वो पब्लिक अकाउंट। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में हमने सोर्सेस देखा कि पैसा आता कहाँ से है, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स, क्या ट्रेंड्स हैं वो देखा हमने, चैलेंजेस क्या है सामने वो हमने देखे। नहीं देखे चैलेंजेस के लिए मैंने होमवर्क आपको दिया था कि केलकर कमेटी वगैरह का रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा टैक्स रिफॉर्म्स पे, ये देख लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की बात की हमने कि कहाँ आउटले होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए ज्यादा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही ना हो जाए खाली, सब्सिडीज को रेशनलाइज किया जाए, ये भी बताया कि क्या क्या नुकसान होता है सब्सिडी का, ठीक है, कैसे मिसयूज बढ़ जाता है, पावर सेक्टर की सब्सिडी का एग्जाम्पल तमाम देखे हम लोग। फिर टारगेटिंग ऑफ बेनिफिट्स होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, जनधन अकाउंट खुल गए सबके, वो सब बात हमने किया। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग पर आए, हमने खूब डिटेल में हमने समझा पूरा बैकग्राउंड, इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा है, आगे क्या होना चाहिए डेफिसिट फाइनेंसिंग में, ये हमने देखा। पब्लिक डेट को पूरी तरह से हम समझ गए अच्छे से, कॉम्पोजिशन क्या है पब्लिक डेट की, हमने देखा कि पब्लिक डेट कहाँ से कहाँ तक आता है। कुल मिलाकर हमने देखा कि एक्सटर्नल सेक्टर से आता है पैसा, इंटरनल बोरोविंग से आता है, ठीक है। हमने देखा कि टोटल 1 लाख करोड़ रुपए का टोटल में कैसे 80% क्या है, इतना परसेंट क्या है, ये सब देखा हमने। ट्रेंड्स, उसके ट्रेंड्स क्या रहे हैं, पब्लिक डेट के कैसे कर्जा बढ़ा या घटा है, ये हमने देखा था। एक ग्राफ भी लाए थे न्यूज़पेपर कटिंग को लेकर। फिर फिजिकल पॉलिसी पर आए हमने, तो ऑब्जेक्टिव्स देखे, इवोल्यूशन देखा, उसका फ्रेमवर्क क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इवैल्यूएशन कि हमारी पॉलिसी कैसी है, ठीक है। फिर नया फिजिकल फ्रेमवर्क जो है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, नया फिजिकल फ्रेमवर्क पढ़ लीजिएगा, एनकेसिंग कमेटी के रिकमेंडेशंस देख लीजिएगा। फिर मिसलेनियस इश्यूज में हमने काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी जो है वो देखी, फिजिकल रिस्पॉन्स टू कोविड, ये आपको पढ़ना है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं। अब जब कॉन्सेप्ट समझ गए हैं ना, तो ये सब आपके सेल्फ स्टडी की चीज है, क्या है परेशान होता है। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आपस में कैसे मिलते हैं, ये अभी भी हमने समझा। इस प्रकार पब्लिक फाइनेंस पूरी तरह से हम समझ चुके हैं। ये देख लेना भाई आदित्य, तुम गवर्नमेंट जो डिविडेंड वाला बोले थे, आरबीआई हर बार क्या है ना, जितना भी उसका ऑपरेशनल प्रॉफिट वगैरह होता है सब करने पर परसेंटेज वगैरह नहीं याद रहता है हमको, तो वो तुम एक बार मार्केट में देख लियो बस, खाली उतनी सी बात। तो हम लोग पूरा अच्छे से देखते जाइए, आप एक एक स्क्रॉल करते हुए, हम लोगों ने पूरा समझ लिया है अब इसे। मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा होगा, बहुत 2-4 चीज छूटी होगी, वो सेल्फ स्टडी की होगी, आई एम वेरी श्योर कुछ बचा नहीं है। मुख्य बजट्स हो गए, रेवेन्यू कहाँ से आता है, ये देखिए, एक ये चार्ट भी मैंने लगा दिया, डिस्कस नहीं किया था लेकिन मैंने आपके पीडीएफ में डाल दिया। फिर टैक्स रेवेन्यू जो है वो, नॉन टैक्स रेवेन्यू, दो सोर्सेज हो गए, क्या ट्रेंड्स रहे हैं देख लीजिए, ये ट्रेंड्स रहे हैं, ठीक है, कम से कम पिछले 10 साल का दिया हुआ है, 2011-12 से 2021-22 तक देखो। फिर इवोल्यूशन कैसे हुआ है टैक्सेशन का, ये देखिए, इनकम टैक्स, ये सब चार्ट मैंने बाद में डाले हैं, डिस्कस नहीं किया, जरूरी नहीं डिस्कस करना, इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ऐसे ही बजट जो हुआ है, बजट का देख लीजिए, ये बजट का डायरेक्शन रहा, ये सब पढ़ लीजिएगा। मैं अभी कुछ ही दिन में, 2 दिन लगेगा मुझे लगता है अभी सब कंपाइल करने में, जितना भी पीडीएफ है सब अपडेट करना पड़ता है ना क्लास के बाद भी, कि ये चीज नहीं सीखी या ये चीज नहीं डालनी है, तो सब करके तब देता हूँ। पब्लिक एक्सपेंडिचर और उसका मैनेजमेंट हमने अच्छे से समझा, इसमें कोई दो राय नहीं। कितने तरह के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, क्यों सरकार, भारत सरकार हमेशा से दबाव में रही है एक्सपेंडिचर के, पैसा कहाँ जाता है, 100 रुपए में से कितना पैसा किस तरफ जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट तो हमने जबरदस्त थ्योरी इसकी पढ़ी थी, कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमको, ठीक है।
फिर इंडिया का पब्लिक डेट है, उस पर हम गए और हमने बहुत अच्छे से समझा। यही मैं बात कर रहा था आपसे, 80 लाख करोड़, 11 लाख ये, 3 लाख, 3 लाख ये, इस प्रकार से हो। फिर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भी अगर ब्रेकअप किया जाए तो देखो इतने भाग इसके बनते हैं। हमने देखा कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल होती है ना। अभी ये वापस हम पढ़ेंगे, चिंता न करना, इसके बारे में अगला तैयार है आपका। वो है, माय क्वेश्चन वाज इन रिलेशन टू 2000 क्या है, गवर्नमेंट टू 1.7 लाख करोड़ फ्रॉम आरबीआई, आउट ऑफ विच 70% इज सेड टू बी डिविडेंड्स। हाँ अच्छा, तो इस तरह से पूछ रहे हो अगर, तो सिंपल सा बात समझो, टोटल फ्लो आरबीआई से गवर्नमेंट को कितना जाता है, शायद वो तुमने लिखा कि 1.7 लाख करोड़। अब इसका 70% तो डिविडेंड ही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो तो वैसे भी देना ही था, आरबीआई को देना ही चाहिए था। समझ गए बात। तो बाकी का जो 17 सत्तर 119 वही हो गया। तो बाकी का जो 50,000 करोड़ जैसा बचा, वो समझो कि वो आरबीआई से नेट फ्लो हुआ गवर्नमेंट को। डिविडेंड जो है वो हर साल आरबीआई जब मार्केट ऑपरेशंस जो करता है, अगर आरबीआई बाकी सभी प्लेयर्स की तरह आरबीआई अपने मार्केट ऑपरेशन से, करेंसी के एक्सचेंज से, इससे उससे अगर कोई प्रॉफिट कमाता है तो उस प्रॉफिट में से वो प्रॉफिट सरकार को डिविडेंड के रूप में जाता है। ठीक है, वो डिविडेंड बता रहा है कि 70% तो वो डिविडेंड ही था। तो कुल मिलाकर 50,000 बचेगा, जो रेस्ट वाज चार्ज फ्रॉम कंटिजेंसी फंड। फाइन, ओके आदित्य, दैट्स अ न्यूज, गुड। तो हम कहां पे आ गए, ये कहां पे थे बे? हाँ, ये देख लिया हमने एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज है उनका। हाँ, मैं कह रहा था कि अभी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वगैरह के बारे में हम और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपका जो है, खैर इसको बंद करते हैं, मैं दिखा देता हूँ खाली कल के लिए, कल परसों जब भी क्लास ले पाऊंगा तो आपके लिए। एक इंपॉर्टेंट सेक्टर मुझे लगा कि वो छोड़ा नहीं जा सकता स्टडी के लिए। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, 2 मिनट और आपका लूंगा और समझ लीजिए, ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, वो कितने हैं? प्लानिंग, डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, ठीक, यही सब तो है। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। एक और है कि जब से इकोनॉमी ओपन हो गई है तब से एक्सटर्नल सेक्टर में क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा है, ये सब चीजें है कि नहीं है। WTO से इंडिया का क्या, कैसे बैठता है, क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को कैसे मैनेज किया जाए, अगर इन सबको जोड़ लो जितना हमने अभी तक पढ़ा है, तो और आप आराम से निष्पक्ष रूप से विचार करें, तो जो कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशनल एस्पेक्ट है वो सब इसमें कवर हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मान लीजिए आप कहें कि सर आपने एग्रीकल्चरल सेक्टर नहीं पढ़ाया। अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी तक समझ गए हो जो उसमें काम नहीं आएगा जब तुम पढ़ना शुरू करोगे? तो यही घूम घुमा के इंडस्ट्रियल सेक्टर, घूम घुमा के वही आएगा। क्या आएगा? सेविंग्स, वेजेस, इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम, घूम घुमा के यही सब कॉन्सेप्ट सर्कुलेट होते रहेंगे। आप देख लेना, कुछ नई चीजें भी होंगी, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब यही प्लान है अपना, क्योंकि हमें बहुत स्पीड से कवर करना है। तो एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ाने के बाद इकोनॉमी को ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे, सर पॉलिटी शुरू करेंगे, और हम लोग 26 जनवरी 27 जनवरी जब से भी ये शुरू होगा। और इकोनॉमी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन वीकेंड्स पे लॉन्ग क्लासेस, मैराथन क्लासेस लेकर इकोनॉमी को जारी रखा जाएगा, जिंदा रखा जाएगा। क्योंकि बेसिक्स आप समझ चुके हैं, तो टॉपिक्स उठा के नए नए, जैसे एक दिन उठा लिया कि आज तीनों सेक्टर खत्म कर देते हैं, किस सेक्टर के क्या स्ट्रेंथ है, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी, उस दिन वो खत्म कर दिया। इस प्रकार से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए ये करना पड़ेगा। समझ गए आप? सेल्फ स्टडी को जो है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। वीना कुछ कहना चाह रही है शायद, या हो सकता है गलती से हो, मैं करता हूँ। जस्ट अ मिनट। यस वीना, यू कैन स्पीक नाउ। गुड इवनिंग सर। इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा करंट अफेयर्स है, बट वो इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है। इनफैक्ट सर, एक फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा चर्चा में रहा था पिछले 3-4 महीने से, कि हम लोगों ने रसिया को पीछे छोड़ दिया एंड ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। बट अभी एक हफ्ते पहले मैंने शायद ये न्यूज पढ़ी थी कि इंडिया के ऊपर एक जो लोन है लगभग $256 बिलियन का, और उसे वो इस साल पे करना ही करना है, 2022 में शायद टाइम लिमिट है। तो
उसके लिए हम यूज करेंगे अपना फॉरेक्स रिजर्व। तो इस पर मैं क्वेश्चन मतलब आंसर लिखने की कोशिश कर रही थी 150 वर्ड के लिए, लेकिन एक इन्फ्लेशन और दूसरा रुपए का वैल्यू अगेंस्ट डॉलर घट जाने के अलावा मुझे कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपसे एक बार पूछूं इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं। बिना उससे पहले तो आप बताइए प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या फ्रेम किया आपने? प्रश्न ये है सर कि जैसे हम जब वो डेब्ट जो हमारे ऊपर लोन है हम उसको जब पे करेंगे बाय यूजिंग अ फॉरेक्स रिजर्व, तो उससे हमारे इकोनॉमी पे हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर आने? जी बहुत बढ़िया। ये देखिए स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ये आपका अभी जो बात ही कर रहे थे यही आपका अगला टॉपिक है। ठीक, पूरी तरह से जब आप इसका इंटरनल मैकेनिज्म समझ जाएंगे तब आप इस सवाल का भी बहुत आसानी से जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। और ये टॉपिक खत्म करने के बाद आप ये क्वेश्चन वापस याद दिलाइएगा और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या मैं पूछ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, बट मैं पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि 28 को जो एग्जाम है अगर उसमें ये क्वेश्चन आ गया तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। 28 को कौन सा एग्जाम है? पीसीएस मेंस। पीसीएस मेंस का एग्जाम है, तो ये तो कल ही परसों ही खत्म हो जाएगा। व्हाई डू यू वरी? ओके सर, ओके, डोंट वरी। हाँ, आपने बोल दिया तो ये कवर होगा, चिंता मत करिए। ओके सर, थैंक यू सर। ऑल राइट, तो यही हम लोग एक्सटर्नल सेक्टर को अच्छे से कर लेंगे, कल परसों में निपटा देंगे और उसके बाद फिर टॉपिक वाइज उठाया जाएगा। सारा बेसिक्स जो है आप पढ़ चुके हैं। सोचिए कहाँ से हम लोग चले थे, है ना? इकोनॉमी का एबीसीडी से चले थे कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, और कहाँ तक हम लोग भगवान की कृपा से पहुंच गए। तो वी हैव डन ओके टिल नाउ, वी कैन से दैट। और एक्सटर्नल सेक्टर जब आप समझ जाएंगे, ये सब सेक्टर्स जितने भी हमने पढ़े हैं, आप ये बात खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि जितने सेक्टर्स हम अभी तक पढ़े हैं ये वो हैं जिनका आंसर आप जनरल नॉलेज के बेसिस पे नहीं दे सकते कि हाँ थोड़ा बहुत तो हमको लॉजिक से लिख लेंगे। नहीं, लॉजिक से नहीं लिख पाओगे। ये आपको कॉन्सेप्ट्स मालूम होने पड़ेंगे तब लिख पाओगे। इनके बेसिस पे बाकी का आंसर आप लॉजिक से भले ही लिख ले जाए। दैट इज माय टेक ऑन दैट। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट टिल नाउ। वी सी ईच अदर इन द नेक्स्ट सेशन। गॉड ब्लेस एवरीवन। जय हिंद, गुड नाइट।